Cunha, Bruno, Luke Shaw, Cunha, 3 points, 3 points, दोस्तों. देखो, I am more concerned about the result rather than the means of the result. भाई, hard fought victory थी. वर मैनचेस्टर यूनाइटेड लकी 100% भाई. 2 बार क्रॉस बार लगा, एक बार एंजो फर्नांडिस ने एक ऐसा गोल मिस किया जो मोर ऑफन देन नॉट वो स्कोर कर सकता है. 100% we were lucky, but fortune favors the brave, and we now have 1 foot into the Champions League for next season. देखो यार, हमारा कोई स्टाइल ऑफ प्ले तो है नहीं, हमारा कोई सिस्टम तो है नहीं जो हम सोचे कि यार मैनेजर का ये सिस्टम है और हम इसके कॉन्ट्ररी खेल रहे हैं. नहीं भाई, सिस्टम प्रोजेक्ट सब गायब हो गया था व्हेन रूबन आमोरिम गायब हो गया था भाई. एंड राइट नाउ व्हाट माइकल कैरिक, जो उसका जॉब है, इट इज सिंपल. सारे प्लेयर्स को करेक्ट पोजीशन पे खिलाओ, मेक फुटबॉल एज सिंपल एज पॉसिबल, है ना, एंड गिव द बेस्ट चांस टू योर टीम टू गेट दोज रिजल्ट्स भाई. आज उसने वही किया. ऑफ कोर्स यू न्यू इट, आई नो दैट चेल्सी वर वुंडेड, देयर फैंस वर बूइंग देम, but still to go out there and get those 3 points is a very difficult task दोस्तों. 21 शॉट मारे हैं चेल्सी ने और हमने 4 शॉट मारे, बट वी वर क्लिनिकल इनफ. इट वाज Cunha थ्रू अ ब्रूनो फर्नांडिस का पास which helped us get over the line, and with this Bruno Fernandes has 18 assists for this Premier League season, highest amongst all the top 5 teams in Europe this season भाई. ओलीसे के साथ टाई हो चुका है वो 18, एंड प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड है 20 प्रीमियर लीग असिस्ट इन एन इंटायर सीजन. ये था केविन डे ब्रुयना और ये था थियरी ऑनरी, एंड ब्रूनो फर्नांडिस विद 5 गेम्स टू गो has a very good chance of beating that bhai. So let's go Bruno, our captain magnifico bhai. Love you Bruno Fernandes yaar. Cool. Let's talk about the match यार. सबसे पहले तो why this victory sounds a bit more sweeter is because हमारे पास सेंटर बैक्स ही नहीं थे भाई इस गेम में. We did not have Harry Maguire who was red carded. We did not have Lisandro Martinez who also was red carded. क्यों मेरे को पता नहीं, रेफरी की बायसनेस अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट वो नहीं खेल रहा था. लेनी ओरो को भाई पता नहीं क्या चोट वोट लग गई, क्या हो गया लास्ट मिनट पे, ही वॉज ऑल्सो इंजर्ड भाई. आपका मैथ्स डिलेट तो पूरा आउट फॉर द सीजन है ही. सो वी वर रनिंग शॉर्ट ऑफ सेंटर बैक पार्टनर्स. यस, एडन हेवन वाज वन, बट उसके साथ कौन खेले? पहले हम स्पेक्यूलेट कर रहे थे कि नहीं भाई, लूक शॉ लेफ्ट सेंटर बैक बने, एडन हेवन राइट सेंटर बैक बने, डियोगो डालो लेफ्ट बैक बने, माजरूई राइट बैक बने, ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहे थे. बट लूक शॉ वॉज लेफ्ट बैक, Ethan Heaven was left center back, Mazrui played out of position and became the right center back, and Diogo Dallo was the right back. यार, this is what we started as. So actually Mazrui playing out of position made all the other players play into their position भाई, कि ज़्यादा कुछ tweak करने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े. And I have to say that Ethan Heaven was brilliant today भाई. Yes, जैसे मैंने बोला chances वो create कर रहे थे, but he definitely had some good stats to show, and he played a decent football. ऐसा लग नहीं रहा था that he is playing a Premier League game after a long time. He looked right into place, he looked calm, he looked composed, which is what you want from a player like Ethan Heaven दोस्तों. 100% aerial duels won, 89% pass accuracy, 59 touches, 4 blocks, 3 tackles attempted, 3 tackles won, 3 clearances, 2 passes into the final third, and a clean sheet. That is Ethan Heaven for you. Absolutely एक calmness की मूरत था भाई वो. Plus Senne Lammens today was also very very good दोस्तों. Yes, man of the match Bruno Fernandes को मिला, but I have to give shout out to an Ethan Heaven and a Senne Lammens भाई. Senne Lammens ना quite possibly has been the best signing of the season. Yes, you guys can debate. Cunha ने गोल भी मारा है भाई. He has also reached double figures this season in terms of goals and assist contributions as well, है ना. But Senne Lammens brings in that, you know, calmness, that command inside that penalty box दोस्तों, जो कि ओनाना और बाइंदर से नहीं आती थी. That is an absolute fact भाई. He also made 3 saves, 3 crucial saves which helped Manchester United kept a clean sheet भाई. Having said that, players out of position भी थे, डिफेंस हमारा स्ट्रांग था,
but still we were conceding a lot of chances. In fact, the goal which we scored was a crazy goal by Matheus Cunha. फर्स्ट हाफ में उससे पहले एक और चांस मिला था कुनिया को, जो कि ब्रायन एम्बूमो ने क्रॉस किया था, एंड दैट वाज अ गुड क्रॉस. अगर कुनिया का वो फर्स्ट टच और बेटर होता ना, इट कुड हैव बीन 1-0 अर्लियर देन व्हाट इट वाज बाय. देन ऑफ कोर्स कुनिया मेड क्या बोलूँ, रिडेम्पशन उसने अपना कर दिया फॉर हैविंग दैट पुअर फर्स्ट टच early on in the first half, where he scored towards the end of first half through a Bruno cross coming from the right hand side by. मज़ा आ गया, यही हमारे को चाहिए था. वैसे ही चेल्सी के फैंस अपनी टीम को बू कर रहे थे. दे आर नॉट इन अ गुड प्लेस राइट नाउ. दे प्रॉबली लॉस्ट लाइक 6 ऑफ द लास्ट 7 गेम्स. एक जो जीते हैं वो FA कप में जीते हैं, वो भी प्रीमियर लीग टीम के अगेंस्ट नहीं जीते थे. सो दे हैव अ स्ट्रिंग ऑफ रिजल्ट्स, दे हैव अ बैड मोमेंट, एंड दिस वी वर सेइंग बिफोर द मैच कि अगर कोई बेस्ट टाइम है चेल्सी को खेलने का, इट इज़ दिस टाइम भाई. एंड वी कैपिटलाइज्ड इट अगेन. चांसेस उन्होंने क्रिएट करे अगेन. वी वर लकी, but we got ourselves over the line bhai, and I'm very very happy. Of course कोबी मेनू का डाउटफुल था going into the game कि क्या वो खेल भी पाएगा कि नहीं. इज ही 100% फिट, बट उसके आते ही ना एक बैलेंस आ जाता है दोस्तों. इट इज़ नॉट अबाउट कि क्या उगाटे और कैसिमीरो साथ में खेल पाएंगे. इट इज़ अबाउट दैट बैलेंस कि कैसिमीरो थोड़ा स्वीप करे, wins the ball back, gets in those tackles, and Kobe Manu is running up and down the pitch yaar. So two different roles, Kobe Manu doing it perfectly. He had a very very decent game, a much better game than what Manuel Ugarte had against Leeds United. And भाई Uncle Casemiro, he is also a cutie pie भाई. कैसेमीरो के नंबर्स भी आपको देख के यही लगेगा कि भाई क्यों जा रहा है यार वो. मतलब आई वुड नॉट वांट कैसेमीरो टू लीव, बट नो प्लेयर मेड मोर ब्लॉक्स 7, more ball recoveries 5, or more tackles 5 than Casemiro versus Chelsea. The farewell tour continues in style दोस्तों, है ना. And the cherry on top of the cake, हमारे गारनाचो भैया, who was actually on the bench, but Esteva उनका इंजर हो गया, so Garnacho had to come in onto the pitch. He played 74 minutes. He lost the possession 15 times. 4 times he was fouled. 0 accurate crosses, 0 shots on target, 0 goals and 0 assists. भाई तो अच्छा लगा. आई नो ही इज़ रियलाइजिंग हिज मिस्टेक. उसने एक दो इंटरव्यू दिए हैं कि यार आई डिड रियली बैड थिंग्स ड्यूरिंग द लास्ट 6 months एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. वी डोंट केयर भाई. तूने टीम का एटमॉस्फेयर ख़राब किया. टैलेंट जितना भी हो, पोटेंशियल जितना भी हो, अगर एटीट्यूड ख़राब है ना तो प्लेयर कुछ नहीं कर सकता. इज़ व्हाट माय ओपिनियन इज़ भाई, है ना. सो आई डोंट थिंक एनीथिंग अबाउट अलेहांड्रो गारनाचो. वो एक्स है भाई, अब वो चली गई है. अब वो चाहे हर मैच में दूसरी टीम्स के अगेंस्ट 100 गोल मारे, 1 गोल ना मारे, वी डोंट गिव अ शिट. व्हाट वी गिव अ शिट अबाउट इज चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन दोस्तों. ऑनेस्टली अभी हमारा अगला गेम ब्रेंटफोर्ड के साथ है. देखते हैं उस मैच में क्या होगा. वील टॉक एंड वील डिस्कस अबाउट दैट. बट आई थिंक वी हैव नाउ मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर आवरसेल्व्स इनटू द चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन. अगर हम प्रीमियर लीग टेबल देखें, एक सेकंड रुको यार, मैंने ही नहीं खोला हुआ. प्रीमियर लीग टेबल अगर हम देखें, सो वी आर नाउ एट 58 पॉइंट्स इन 33 गेम्स. एस्टन विला के 32 गेम्स में 55 पॉइंट्स है. हमारा गोल डिफरेंस ज़्यादा है. लिवरपूल के 52 पॉइंट्स है 32 गेम्स में. तो अगर लिवरपूल जीतती भी है तो भी हमसे 3 पॉइंट पीछे रहेंगी. एंड इस सीज़न 5 टीमें जाएंगी यार चैम्पियंस लीग के लिए, टॉप 5. So Chelsea right now is at the 6th place with 48 points, which is a 10-point difference from Manchester United. मैं United के perspective से बात करता हूँ भाई. So that's a good thing. And अब देखते हैं बाकी सारे मैचेस में क्या होगा. 5 more matches to go. I would fancy Manchester United to qualify into the Champions League very very easily. Luke Shaw also had a very very good game. And let's see, let's take it on from there. What were your thoughts of the game? Please भाई शर्माओ मत, बताओ अपना comment section में. Thank you so much for joining. Take care. Love you. See you. Bye bye.